بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ میں ایک رائٹر ہوں، پیشہ ور رائٹر نہیں جو اپنی کہانیاں معاوضہ لے کر دیتے ہیں۔ میں وہ رائٹر ہوں جو دل سے لکھتا ہوں، اور اکثر ایسی کہانیاں ہوتی ہیں جنہیں عقل تو تسلیم نہیں کرتی، کہ لوگ یقین نہیں کرتے دنیا میں ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں جو لکھتا ہوں سچ لکھتا ہوں، اور آج تک ایسی کوئی چیز نہیں لکھی جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی یا سنی نہ ہو۔ خیر، زیادہ تمہید باندھنے سے پہلے میں آپ کو اپنی زندگی کی ایک ایسی کہانی سناتا ہوں جو سب سے خاص ہے۔ ان دنوں میرا تبادلہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں کر دیا گیا تھا۔ یہ تبادلہ سزا کے طور پر کیا گیا تھا، کیونکہ میری افسران سے انبن ہو گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں غریبوں کے حق میں بات کروں۔ بہرحال مجھے یہاں پر فوری طور پر اپنی رہائش کا استعمال کرنا تھا، کیونکہ یہاں پر آنے کے بعد میں دن رات آفس میں ہی رہتا تھا۔ ایک ہفتہ گزر جانے پر بھی میرے لیے مکان کا بندوبست نہ ہوا تو میں اپنے اسسٹنٹ پر برس پڑا۔ کہنے لگا، سائیں کیا کروں، اتفاق سے کرائے کا ایک مکان بھی اس گاؤں میں خالی نہیں ہے۔ میں نے کہا، بھائی کیا اتنی بڑی آبادی کے گاؤں میں ایک مکان بھی کرائے پر نہیں مل سکتا؟ میں نے مایوسی سے پوچھا تو کہنے لگا، ایک خالی مکان تو ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ وہ مکان آپ کو دلاؤں، اس لیے کہ وہ آسیب زدہ ہے۔ اس میں کوئی بھی شخص 2 دن سے زیادہ نہیں ٹک سکتا۔ میں نے کہا، بس یہی بات ہے؟ میں نے کہا، آسیب نے کس کس کو نقصان پہنچایا ہے؟ کہنے لگا کہ نقصان تو نہیں پہنچایا، لیکن وہ مختلف روپ میں آ کر انسانوں کو ڈراتا ہے۔ میں نے اپنے اسسٹنٹ سے کہا کہ میں ان باتوں سے ڈرتا نہیں ہوں، آج تک اپنی زندگی جیسے گزاری ہے وہ سبھی جانتے ہیں۔ میں ایک بے خوف انسان ہوں، اس لیے تم میرے گھر کا بندوبست کرو، چاہے وہ آسیب زدہ ہو یا وہاں جنات کا بسیرا۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بچپن سے میں ایسے کئی واقعات سنتا آ رہا ہوں، لیکن ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ تم ایسا کرو کہ وہ مکان مجھے کرائے پر لا دو، میری بچپن سے آسیب کو دیکھنے کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی، باقی جو ہوگا وہ میرا نصیب ہے۔ میری بات سن کر میرا اسسٹنٹ سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے مجھے مکان تو دلانا ہی تھا، لہٰذا اس نے اپنی سی کوشش کر دی۔ مکان مل جانے پر میں اپنا مختصر سا سامان لے آیا۔ مہربان کی طرح میرے آفس کے دیگر ساتھیوں نے بھی مجھے اس مکان میں جانے سے روکا تھا، مگر میں نے کسی کی نہیں سنی تھی، کیونکہ میں ان چیزوں سے ڈرتا نہیں تھا اور نہ ہی یقین رکھتا تھا۔ رات کو میں صحن میں ہی چارپائی بچھا کر لیٹ گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جیسے مجھ پر نیند سی طاری کرنے لگے۔ میں سو گیا، مگر رات کے نہ جانے کس پہر میری آنکھ کھلی۔ مجھے لگا کہ کسی نے چارپائی کو دھکا دیا ہو۔ بے اختیار میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے سوچا کہ یہ میرا وہم ہے، دوبارہ سونے کی کوشش کی، مگر نیند اڑ گئی۔ تبھی میں نے پاکٹ سے سگریٹ نکال کر سلگائی۔ صحن میں نیم کا کداور درخت بھی موجود تھا۔ میری بے اختیار نظر درخت پر پڑ گئی جس پر ایک بندر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں لڈو تھے جبکہ پاؤں میں گھنگرو باندھے تھے، شاید وہ کسی کا پالتو تھا۔ مگر اس سوچ سے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ یہاں پر چڑھ کر لڈو کیوں کھا رہا ہے۔ مجھے دیکھتے ہوئے وہ دانت نکال رہا تھا۔ بندر کے دانت دور سے چمکتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ چاند کی تیز روشنی کے سبب میں بندر کو دیکھ رہا تھا، ورنہ اندھیرے میں درخت پر چڑھے بندر کے دانت دیکھنا تو دور کی بات، اسے دیکھنا ہی مشکل تھا۔ میرے کسی بھی قسم کا رد عمل ظاہر نہ کرنے پر وہ چیختا چلاتا وہاں سے بھاگ گیا۔ سگریٹ ختم ہونے پر میں بھی دوبارہ نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ صبح آفس میں نے اپنے دوستوں کو یہ واقعہ سنایا تو کہنے لگے کہ وہ ضرور آسیب ہوگا اور بندر کی صورت میں تمہیں ڈرانے آیا ہوگا۔ میں نے کہا، اچھا، اگر وہ مجھے ڈرانے ہی آیا تھا تو مجھے دیکھ کر بھاگ کیوں گیا؟ خیر، میری اس بات پر وہ لوگ کچھ نہ بولے۔ شام گئے میں جب آفس سے گھر پہنچا تو کہانی لکھنے کے لیے بیٹھ گیا، کیونکہ میرے ذہن میں کہانی کا خاکہ موجود تھا۔ رات ہو جانے پر میں صحن میں کہانی لکھنے کے لیے کاغذ سنبھال کر بیٹھ گیا۔ ابھی مشکل سے 2 صفحے ہی لکھ پایا تھا کہ ایسا لگا پاؤں کے تلووں میں کوئی گدگدی کر رہا ہے۔ میں نے چونک کر نیچے دیکھا تو ایک سفید رنگ کی بلی تھی جو میرے پاؤں کے تلووں پر اپنا منہ لگا رہی تھی۔ مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر وہ پاؤں کے ارد گرد چکر کاٹنے لگی۔ تم بھوکی ہو؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں کرسی سے اٹھ کر باورچی خانے کی طرف چلنے لگا۔
वो भी मेरे पीछे पीछे आने लगी। मैंने दूध एक खाली बर्तन में डाला और सहन में एक जगह रखकर बिल्ली को उस जाने मुतवज्जे करना चाहा। बिल्ली सहन से ऐसे गायब थी जैसे आई ही ना हो। मैं वापस आकर कुर्सी पर बैठ गया। मुझे कहानी मुकम्मल करना थी। मुकम्मल होने पर मैंने कलम बंद किया। एक निगाह दूध के बर्तन पर डाली तो बर्तन से दूध गायब था। इसका मतलब था कि बिल्ली खामोशी से आकर दूध पी गई थी। मैं कहानी लिखने में इतना मगन था कि उसके आने और जाने का पता ही नहीं चला। उस दिन से बिल्ली मुझसे मायूस हो गई। वो रोज़ाना घर आने लगी और मैं बर्तन में दूध डाल देता और वो दूध पीकर चली जाती। मुझे इस घर में आए हुए 10 दिन हो चुके थे। मुझे किसी आसेब ने तंग नहीं किया था। इसका मतलब ये था कि इस घर में आसेब का वजूद था ही नहीं। लोगों ने वैसे ही इस मकान को बदनाम कर दिया था। शायद कि मालिक मकान से कोई दुश्मनी होगी। ये बात मेरे जहन में इसलिए आई कि हमारे मोहल्ले में एक खाली मैदान था। गर्मी के दिनों में यहाँ बुज़ुर्ग और बच्चे शाम से रात गए तक बैठ जाया करते थे। इसलिए गर्मी के सताए अपने जिस्म को ठंडा करने बाकी लोग भी वहाँ आ जाते। सब कुछ ऐसे ही जा रहा था कि एक शाम मैंने सुना कि मैदान में आसेब आ गया है। आसेब की खबर से वहाँ शाम में आने वालों ने वहाँ का रुख बंद कर दिया। बच्चे भी रात को वहाँ जाने से कतराने लगे। एक दिन मैंने जहाँसेब को देखा। वो मैदान की तरफ आ रहा था। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। हाँ भाई, यहाँ से कैसे आ रहे हो? कहने लगा मैं काम से गया था। मैंने कहा यहाँ तो क्या आसेब का राज नहीं है? कहने लगा कि हाँ भाई, ये हकीकत है कि वहाँ अचानक से आसेब आ गया है और वो नज़र भी नहीं आता। मेरे सामने की बात है कि अचानक से काशिफ के मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ पड़ा था। उसका गाल भी सुर्ख हो गया था। मैंने कहा तुम पागल हो सकता है कि किसी मच्छर ने काट लिया हो और उसका गाल सुर्ख हो गया हो। कहने लगा तुम हर बात को मजाक में ले जाते हो। दरख्त की शाखों को ज़ोर ज़ोर से हिला रहा था और तुम उसे मच्छर कह रहे हो। मैंने कहा मुझे तो लगता है कि लोग आसेब की वजह से मैदान में जाने से कतरा रहे हैं और तुम वहाँ से आ रहे हो तो यकीनन ये बात इतनी सीधी नहीं है। दाल में ज़रूर कुछ काला है। मैंने ऐसा इसलिए कहा कि दरअसल जहाँसेब, काशिफ, नज़ीर, वकार ये शरारती लड़कों का टोला था। इन लोगों ने गांव के लोगों को तंग कर रखा था। इनका ग्रुप शरारतों के हवाले से मशहूर था। मुझे लगा कि ज़रूर आसेब की आड़ में इन्हीं का ग्रुप है। तभी मैंने सच्चाई जानने की ठान ली। अभी मुश्किल से 1 महीना भी नहीं गुजरा था कि रात को मैदान के करीब से गुजरते हुए मुझे शोर शराबे की आवाज़ से सुनाई दी। मुझे तजस्सुस हुआ कि देखूं क्या माजरा है। मैदान में मोहल्ले के लोग जमा थे और जहाँसेब ग्रुप की पिटाई लग रही थी। मालूम करने पर पता चला कि मैदान के सामने चंद घर थे। इन घराने की लड़कियों से इश्किया चक्कर चलाने से इन्होंने आसेब का ड्रामा रचाया था। गांव में बच्चों और बड़ों की मौजूदगी में इनका इश्किया चक्कर नहीं चल सकता था, चूँकि बुज़ुर्गों को गर्मियों में मैदान में बैठने की आदत थी। तभी इन लोगों ने आसेब का चक्कर चलाया। असल बात का इल्म होने पर लोग उनकी दुर्गत बनाने लगे। मैं जब भी कहीं आसेब के बारे में सुनता हूँ तो जहाँसेब ग्रुप का वाक़या मुझे याद आ जाता है। खैर, मैं रात को सो रहा था कि अचानक किसी लड़की के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनकर मैं हड़बड़ा गया। आवाज़ कमरे के अंदर से आ रही थी। मैं तेज़ी से कमरे की जानिब लपका। कमरे में किसी किस्म का वजूद नहीं था, लेकिन आवाज़ लम्हा ब लम्हा तेज़ होती जा रही थी। फिर मैं जाकर एक कोने में खड़ा हो गया। मैंने देखा कि आवाज़ ज़मीन की तह से आ रही थी। मैं सोचने लगा कि आखिर ये क्या माजरा है। कहीं वाकई इस घर में भी आसेब का चक्कर न हो, क्योंकि लड़की की आवाज़ को झुटलाया नहीं जा सकता था। दर्द से डूबी ये आवाज़ मकान की तह से आ रही थी। खासी देर आवाज़ आते रहने के बाद वो खुद ब खुद बंद हो गई। मैं भी पूरी रात करवटें बदलते हुए गुजार गया। नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। सुबह मैंने सोचा कि आज ऑफिस ना जाऊं, क्योंकि दिल बहुत भारी सा था। रात नींद भी नहीं आई थी तो थकन हो रही थी। बहरहाल थोड़ी देर के बाद मैंने खाना पीना खाया। उस दिन सारा दिन मैं घर पर ही मौजूद रहा। कोई गैर मामूली वाक़या तो नहीं हुआ, मगर दिन के वक्त बेगम साहिबा ने सोने न दिया कि रात को जागोगे तो कल सुबह फिर ऑफिस नहीं जा सकोगे। रात होते ही मुझे नींद आ गई। तभी बेइख्तियार में जाकर चारपाई पर गिर पड़ा। मैं यूं बेसुध हो गया जैसे बरसों का थका हूँ। पिछली रात कभी सोया नहीं था। थोड़ी देर में मेरी आंख लग गई। तभी मुझे अचानक लगा जैसे कमरे में कोई है। कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास होने पर मैं घबरा गया। आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखा, मगर कोई नज़र नहीं आ रहा था।
बे इख्तियार मेरी नज़रें दीवार पर टिक गईं। एक साया दिखाई दिया। वो साया मेरी तरफ बढ़ रहा था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धक धक करने लगा। ऐसा लग रहा था दिल अभी सीने को चीरता हुआ बाहर निकल पड़ेगा। साए को गौर से देखने पर मुझे एक झटका सा लगा। साए की शरक कटी हुई थी और सुर्ख सुर्ख खून इसमें से बह रहा था। वो साया मेरे और नज़दीक आया। उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि मेरा अपना था। मुझे लगा जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। अचानक वो साया मेरी जानिब मुखातिब होकर बोला, भाग जा, देख फिर तेरा ये अंजाम होगा। भाग जाने में तेरे लिए आफियत है, सोच ले, अभी भी तेरे पास वक्त है। ये कहते हुए वो साया अचानक से गायब हो गया। कमरे में मियाँव की आवाज़ सुनकर मैं चौंका। सफ़ेद बिल्ली दरवाज़ा खुला रह जाने पर कमरे में दाखिल हो गई। मैं ऐसा बेसुध पड़ा था कि मुझे याद ही नहीं रहा कि आज बिल्ली को दूध देना है। मेरा पूरा जिस्म पसीने में नहाया हुआ था। मैंने चारपाई से उठकर पहले बिल्ली को दूध दिया, फिर खुद पानी पीकर प्यास बुझाई। मैं उस वक्त वाकई बहुत खौफजदा था। खुद को कोस रहा था कि मैंने जल्दबाजी से काम लिया। थोड़ा और सब्र कर लेने पर शायद मुझे कोई दूसरा मकान मिल जाता। अगले दिन मैंने इस बात का जिक्र मेहरान से किया तो कहने लगा, मेरा मशवरा है कि जब तक आसिफ तंग न करे आप मकान में रहते रहें, और जब मकान खाली करने को कहे तो उससे कह दें कि किराए का मकान ला दो, मैं तुम्हारा मकान खाली कर दूंगा। मेहरबान ने कहा। उसकी बात में वज़न था। इस तरफ तो मेरा जहन गया ही नहीं था। मेरे साथियों को आसिफ की धमकी देने की बात बताने पर वो मेरा मजाक उड़ाते, सो मैंने किसी और से जिक्र नहीं किया। मेहरबान की बात मेरी समझ में आ गई थी और मुझे यही करना था। खैर, मुझे अब आसिफ से बात करना थी। पूरी रात खैरियत से गुजर गई। फजर की अजान होने में अभी कुछ वक्त था कि मुझे लगा कोई लड़की दर्द भरी आवाज़ में रो रही है। मेरी आंख खुली तो मैंने देखा एक हिंदू औरत सहन में बैठी सीना कोबी कर रही थी। मुझे सख्त हैरत हुई कि वो किस तरह घर के अंदर दाखिल हो गई। बाहर का दरवाज़ा बंद था। मैंने ज़रा हिम्मत से काम लिया, उनसे बात करने का सोच लिया और उनसे मुखातिब हुआ। कौन हो तुम? हम भटकी हुई आत्माएं हैं। तुमने इस मकान में आकर हमारा सुकून बर्बाद किया। हमें जिंदा मर्दों से सख्त नफरत है। जब किराएदार इस मकान में रहने आते हैं तो हमें उन पर गुस्सा आता है। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन किसी को यहाँ सुकून से रहने भी नहीं देंगे। वो औरत बोली, अच्छा, अगर तुम किसी को नुकसान नहीं देती तो फिर डराती क्यों हो? मर्दों पर इतना खफा क्यों हो? क्या बिगाड़ा है तुम्हारा मर्दों ने? जालिम मर्दों ने ही तो हमें इस हाल पर पहुंचाया है। मेरे पूछने पर उस औरत ने मुझे अपनी दास्तान सुनाई, जिससे साबित होता था कि वो वाकई काफ़ी जुल्म सह चुकी हैं। अपनी कहानी सुनाने के बाद उसने कहा कि तुम्हें भी यहाँ से जाना पड़ेगा। उसका धमकी में इस लहजा सुनकर मैं हंसने लगा। तुम क्या कर लोगी अगर मैं इस घर से ना जाऊँ? वैसे भी तुमने खुद ही तो कहा है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, सिर्फ मुझे डरा सकती हो। और फिर तुम्हारे साथ जिन लोगों ने जुल्म किया वो तो तुम जहरीली शराब पिलाकर उन्हें हलाक कर चुकी हो। फिर दूसरे मर्दों से क्यों नफरत करती हो? मैंने कहा तो वो ज़िद से बोली, इसलिए कि हम पर मर्दों ने ही जुल्म किया है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम दूसरे मर्दों की तरह सुकून की नींद सो जाओ? तब वो सोच में पड़ गई। कहने लगी, हाँ, हो तो सकता है अगर हमारे ढांचे को ज़मीन से निकाल कर तुम हमारी रसूमात पूरी कर दो, क्योंकि हमें बेदर्दी से कत्ल किया गया था। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी रसूमात पूरी करवा देता हूँ। तब वो कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम ऐसा नहीं करोगे। उसके लहजे में गुस्सा था। मैंने कहा, क्यों? मुझे कौन रोक सकता है? मेरा गुस्से में आना बजा था। जिन लोगों ने इनके साथ ज्यादती की वो खुद अपने अंजाम को पहुँच गए थे, फिर वो दूसरे लोगों का सुकून क्यों बर्बाद करना चाहती थीं? दूसरों ने इनका क्या बिगाड़ा था? मेरा भी कुछ पता नहीं था कि मैं कब तक इस गांव में हूँ और इस किराए के मकान को छोड़कर कब एक अच्छा घर ले लूँ, लेकिन यहाँ आने वाले दूसरे लोगों का तो कोई कसूर नहीं था। इन दोनों माँ बेटी को सुकून की नींद सुलाना ज़रूरी हो गया था। पेश इमाम और मोहल्ले के लोगों के मशवरे से इन दोनों माँ बेटी के ढांचों को ज़मीन से निकालकर चिता के सुपुर्द कर दिया गया। इलाके के लोग ये जानकर मुझसे खुश हो गए। मैंने 2 काम कर दिए थे। पहला काम जहांगीर के ग्रुप की पिटाई लगवाई और दूसरा काम ये कि इन दोनों माँ बेटी की आत्माओं को पुरसुकून नींद सुलाया। मैं खुश और मुतमईन था कि मैंने जो काम किया है इसके नतीजे में मैं इस मकान में सुकून के साथ रह सकूँगा।
جب تک میرا تبادلہ شہر میں نہیں ہو جاتا یا مجھے کوئی دوسرا مکان نہیں مل جاتا۔ آفس کے ساتھیوں پر میری دھاک بیٹھ گئی کہ میں نے آصف کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور وہاں سے بھاگنے کی بجائے آصف کو ہی گھر سے نکال کر پھینک دیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔